Assalamu alaikum everyone. I hope you all are happy and healthy. Today we are going to learn about conjunction. It's the 7 parts of speech. We have done with 6. It's the 7th one and we are left with only 1. We have 8 as we discussed before. So what is conjunction? Conjunctions are words that join or link other words, other phrases and other sentences together. Simply, conjunctions are joining word which joins words, phrases and sentences. Even phrases को भी, words को भी और sentences को भी जो आपस में मिलाते हैं, we call them conjunctions are joining words. ये ख़ानदान के वो बड़े होते हैं जो ख़ानदान को जोड़ के रखते हैं, क्या बिल्कुल भटकने नहीं देते. तो कंजंक्शन का काम भी जॉइन करके रखना है, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को आपस में मिला के रखना है, इनको बिखरने नहीं देना है. तो सिंपली कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स. लुक एट द एग्जांपल्स बिलो. And, so, but, when and there are many more. Come for the sentence. Ali and Aslam are playing. Here we have and which joins Ali and Aslam. Two words, two noun को ये join कर रहा है. The second sentence we have I will give you my car. It's car not card. I will give you my car whenever you want. तो here whenever is what? Conjunction. Very good. At the end we have he was hungry, so he ate all cake. Here so is conjunction. If you look at the last sentence, he was hungry, it is a complete sentence. He ate all the cake, it's also a complete sentence. So what does so do here? Here it joins two complete sentences together. So simply conjunctions are words which joins words, phrase and sentences together. Types of conjunctions. We have 4 types of conjunctions here: coordinating, subordinating, correlative, conjunctive phrase. Coordinating conjunction. It gives equal importance to words or sentences it connects. It gives equal importance to those words which it connects. जिन words को ये आपस में connect करता है, दोनों को equal ये importance देता है, किसी एक को ज़्यादा favoritism ये नहीं करता. Coordinating conjunction favoritism बिल्कुल नहीं करते, सबको एक ही नज़र से देखते हैं, सबके काम एक ही तरह आते हैं, सबके लिए एक जैसा काम करते हैं. तो favoritism जो है coordination के अंदर, coordinating conjunctions के अंदर नहीं होती. Look at the example. But, for, so, yet. I like coffee, but my friend prefers tea. Would you like coffee or tea? He is 80, yet he still swims. So here जो conjunctions हमारे पास हैं, they are giving equal importance to each part of the sentence. जो conjunction के बाद use हुआ है, जो conjunction से पहले use हुआ है. Next we have subordinating conjunctions. अब इनका काम क्या है? These conjunctions connect main class with subordinate class. Main class is independent class and subordinate class means dependent class. Although, look at the example. Although, because, after, before, etc. Although I failed, I was still confident. Ali didn't go to school because he was ill. Sana got scared when she saw a dog. Here we have although, because and when are subordinating conjunction. Subordinating conjunction हम सब independent class को dependent class के साथ जोड़ते हैं. Next we have correlative conjunctions. These are conjunctions which functions in pair with both words, working together to balance word, phrase or class. Correlative conjunctions का क्या काम है? Which functions in pair. इनके क्या होता है? जोड़ों में ये काम करते हैं, ये अलग काम नहीं, इनके साथ कोई ना कोई पार्टनर होता है.
with more words working together to balance word phrase or clause. Both and, either and or, neither or nor, cannot, but also, not but, ये जो सारे आपके पास पेयर में है, जोड़े में काम कर रहे हैं. So let's see the sentences. Both the teachers and students will be happy. Maybe there is some, like there will be good decision taken by the principal, so both the teachers and students will be happy. They will either work full time or study full time. I will neither work nor study. So here हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन सेंटेंसेस के अंदर 2 टाइम यूज हुए हैं, बोथ एंड, ईदर आर, नीदर नॉर, जो हमने यहाँ पे यूज किया था. कोरिलेटिव कंजंक्शंस का क्या काम है? हमेशा जोड़ों में ये लोग काम करते हैं, अकेले काम नहीं करते. तो सेंटेंस के अंदर अगर इस तरह के आ जाते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, कंजंक्शंस आ जाते हैं, तो समझ जाए दे आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस विच वी नेवर वर्क्स अलोन. इनको हमेशा पार्टनर की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट वी हैव कंजक्टिव एडवर्ब. एडवर्ब वी हैव ऑलरेडी डन विद एडवर्ब, तो आपको अच्छे से पता होगा कि एडवर्ब किस बला का नाम है. दीज आर यूजुअली एडवर्ब्स बट एक्ट एज कनेक्टर्स आर कंजक्शन. कनेक्टर कंजक्शन सेम थिंग. एक्चुअल में इटसेल्फ दे आर एडवर्ब्स. ये सारे एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन एक्शंस इनका जो होता है एज अ कनेक्टर, एज ए कंजंक्शन, ये लोग इन सेंटेंसेस में काम करते हैं. आफ्टर ऑल, बिसाइड, फाइनली है. ओके, इट इज़ फाइनली, हाउएवर, नेवरथलेस, देयरफॉर. इसमें थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड. These conjunctive adverbs need semicolon or period before them and comma after them. अब कंजक्टिव एडवर्ब्स के अंदर जॉइनिंग के अलावा भी यहाँ पे सेमीकॉलन यूज़ होते हैं, जो आपके सामने मार्क दिया गया है, इसको सेमीकॉलन कहते हैं, या पीरियड यूज़ होता है. और आफ्टर दैट हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं. इससे पहले हम सेमीकॉलन लगाते हैं. जब भी कंजक्टिव एडवर्ब यूज़ करते हैं हम पहले उनसे हम सेमीकॉलन लगाते हैं, और जैसे ही हम ये कंजक्टिव एडवर्ब लिखते हैं इसके बाद हमने कॉमा ज़रूर लास्ट में डालना होता है. लुक एट द सेंटेंस. अली लव्स द बुक. आफ्टर ऑल ही लाइक्स ही लाइक्स द स्टोरी बुक्स, या ही लाइक्स स्टोरी बुक. द यहाँ पे नहीं होगा. ही लाइक्स स्टोरी बुक्स. सो यहाँ पे आफ्टर ऑल हमारे पास है कंजक्टिव एडवर्ब. इससे पहले आप लोग चेक करें क्या लगा है? सेमीकॉलन लगा है. इसके बाद क्या लगा है? कॉमा ऑलरेडी यहाँ पे पुट है. सारा kept talking in the class, therefore she was punished. So same is the case with this sentence. यहाँ पे भी सेम हुआ है. तो कंजक्टिव एडवर्ब्स हमारे पास क्या है? दे आर एक्चुअल एडवर्ब बट दे वर्क एज कनेक्टर्स. जब वो एज ए कनेक्टर काम करे तो समझ जाना है कंजक्टिव एडवर्ब है. अगर एज ए कनेक्टर काम नहीं करते तो डेफिनेटली दे आर एडवर्ब्स. दूसरी बात, जब भी हम कंजक्टिव एडवर्ब यूज़ करते हैं या लिखते हैं, इससे पहले हम क्या करते हैं? सेमीकॉलन लगाते हैं. एडवर्ब, कंजक्टिव एडवर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं. सो सेमीकॉलन और कॉमा आप लोगों ने कंजक्टिव एडवर्ब के लिए नहीं भूलना जब भी आप लिखें. सो इट इज़ द एंड ऑफ कंजंक्शंस. आई नो इट्स इजी बट अ बिट ट्रिकी. यहाँ पे आप लोगों के लिए नई चीज़ क्या थी? वेयर इट वाज, यस, कोरिलेटिव के अंदर ना, इट वाज नॉट हियर, यस, इट वाज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. यहाँ पे आप डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास में ज़रूर कंफ्यूज होंगे. इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको एज इट इज समझो. इस टॉपिक पे डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर बाकायदा नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, इंशाल्लाह हम उसमें पढ़ेंगे. तो इसको अगर मैं डिटेल में जाती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही विल बी लेंथी होगी ये वीडियो, इसलिए आप लोगों ने सिर्फ इसको समझना है, इसके साइन समझने, देन एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू. थैंक यू so much for watching, and I hope you will learn from it. Okay, see you in the next video. See you. Can I see you? Okay, tata, bye bye.